Hello everyone, welcome back to my channel. I think everyone is preparing well for your exam because NEET MDS exam is very near to you. Hardly now 16 to 17 days left. So I think you all are preparing very well with your all hard work, dedication and persistence. So today actually I am continuously getting many messages from the aspirants ki ma'am how to revise during the last few days, what to read, what not to read, how did you manage your time. So today I thought to make a video regarding this कि last 15 days में आप कैसे रिविज़न करें. सो बेसिकली क्या है, अभी जो लास्ट 15 डेज है इसको आप लोग डिवाइड कर लो. यू डिवाइड इट अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड द नीट MDS एग्जाम इज़ फ्रॉम 9 to 12. सो फॉर मॉक टेस्ट यू कीप द टाइम 9 to 12. सो 9 to 12 में आप अपना मॉक टेस्ट दो. जैसे सब्जेक्ट वाइज यू डिवाइड इट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वाइज. लाइक सपोज टुडे इज सेकेंड, सो today you suppose you pick up the subject anatomy. So from 9 to 12 you give all the exams, all the tests, all the mock test whatever you have given in the last 1 year. From 9 to 12 you try to revise all them, means just go through the question, don't go to the explanation part. Now it's not the time to read the explanation. It's you just assume it that it's already in your mind, you have read it from the last 1 year. So just assume it कि I know the explanation, I know everything, now I just have to revise. So just go through the questions, like whatever question you have prepared, whatever mock test you have given, from 9 to 12 you concentrate on your mind on that, because the exam is from 9 to 12. So if you prepare yourself from 9 to concentrate till this time 9 to 12, then on the day of exam you will be concentrated on this particular time. So it will be helpful and it will be easy for you to focus on that particular time period. So basically देखो, जैसे few important subjects are there like anatomy, then like prostho, perio, then endo, cons and endo, oral path and oral medicine. Oral path and oral medicine से तो 30 questions आते हैं. This is very important subject. So you mainly focus on these subjects now. Small subjects like biochemistry जिससे hardly 3-4 या 5 questions आएंगे. Then microbiology, sometimes only 3 questions come from microbiology. So now you focus mostly on those subjects which are high scoring subjects. ऑर्थो हो गया, पेरियो, प्रोस्थो, एंडो, कॉन्स एंड एंडो, ओरल पैथ, ओरल मेडिसिन, जनरल मेडिसिन, लाइक दिस सब्जेक्ट. तो इस सब्जेक्ट्स को आप ज़्यादा फोकस करो. 9 to 12 इस सब्जेक्ट्स का रिवीजन दो, और बाकी सब्जेक्ट्स जो सब्जेक्ट्स शॉर्ट सब्जेक्ट्स है, स्मॉल सब्जेक्ट्स है, ऐसा नहीं कि उसको रिवीजन नहीं देना है, उसको भी रिवीजन देना है. डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट कि ये तो शॉर्ट सब्जेक्ट है, मुझे इसका पता है, रिवीजन नहीं दूंगी तो चल जाएगा. डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, क्योंकि ऑन द डे ऑफ एग्जाम you might forget this. So don't be overconfident. Give importance to each and every subject. Focus mostly on those subjects which are high scoring. And जो भी हो, आप जितना भी सब्जेक्ट अभी तक जो भी क्वेश्चंस पढ़ चुके हो, यू ट्राई टू रिवाइज एवरीथिंग. आपके मॉक पेपर्स हो गए, आपके कोई क्वेश्चंस कहीं कुछ ऐप से आपने कुछ क्वेश्चंस किए तो कुछ ऐप का क्वेश्चंस, आपके पल्स का क्वेश्चंस, आपके कुछ जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, आपके कुछ स्टडी मटेरियल्स का क्वेश्चंस, कुछ पिंक पेपर का क्वेश्चंस, जो भी हो, जितना भी पॉसिबल हो बस क्वेश्चंस को मतलब पढ़ते जाओ. अभी एक्सप्लेनेशन की ओर मत भागो. अभी जितना पॉसिबल हो सके क्वेश्चंस करो. एक दिन में 1500 से 1800 क्वेश्चंस करो. बस फोकस ऑन योर माइंड ऑन सॉल्विंग क्वेश्चंस. स्पेशली 9 to 12 इज़ लाइक यू आर गिविंग योर मॉक एग्जाम. ऐसे करके एग्ज़ाम को मतलब ऐसे करके माइंड सेटअप करो कि 9 to 12 में मॉक एग्ज़ाम दे रही हूँ, ये सब्जेक्ट वाइज. ऐसा एक सब्जेक्ट चूज़ कर लो. 9 to 12 में उस सब्जेक्ट को ही देना है, और फिर बाद में बाकी टाइम पे आप जैसे रिविज़न करते हो रिविज़न करो. जैसे बेसिकली मैं बताती हूँ मैं क्या करती थी. मैं पर डे एक सब्जेक्ट चूज़ कर लेती थी. तो उस दिन मैं पूरा उस सब्जेक्ट का ही पढ़ूंगी, दूसरा सब्जेक्ट में नहीं पढ़ती थी, बिकॉज आई एम नॉट दैट ए काइंड ऑफ मिक्सिंग मल्टीपल सब्जेक्ट्स इन ए डे. मुझे ऐसा होता था कि आई विल कंप्लीट वन सब्जेक्ट देन आई विल गो टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट. सो जिसका जैसा भी पढ़ने का वो है वो उसी तरह से कर लो. मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा जो मल्टीपल सब्जेक्ट्स करते हैं. 1 घंटा ये सब्जेक्ट, 1 घंटा एनाटॉमी कर लिया, 2 घंटा बायोकेम कर लिया, 3 घंटा ओरल पैथ कर लिया. ऐसे बहुत सारे होते हैं, पर आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन.
सो जिसका भी जिस तरह से है वो अपने हिसाब से करे। किसी को अगर मल्टीपल सब्जेक्ट मिक्सिंग करके पढ़ना है तो मल्टीपल सब्जेक्ट मिक्सिंग करके एमसीक्यू प्रैक्टिस करो। किसी को अगर ऐसा है कि होल डे एक ही सब्जेक्ट करना है तो होल डे एक ही सब्जेक्ट को उठाओ और उस सब्जेक्ट को प्रैक्टिस करो। सो हार्डली अभी 15 to 16 डेज़ बचा है। उस 15 to 16 डेज़ में एक एक सब्जेक्ट पर डे उठाओ और पढ़ते रहो। स्मॉल सब्जेक्ट्स लाइक बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, DADH, these are very small subjects, so you can combine 2 subjects in a day, or large subjects like oral path and oral medicine. So for this subject you need 1 full day. And lastly I will say कि be positive. हार्ड वर्क रंग लाती है, ये हम बचपन से पढ़ते आए हैं। सो इट्स ऑल योर हार्ड वर्क, योर डेडिकेशन, योर कंसिस्टेंसी till this exam. So be consistent in your exam, have positive attitude कि I can do this, and then keep doing your hard work, keep doing your work, result will surely come. हार्ड वर्क रंग ज़रूर लाएगी, ठीक है। चलो तो all the best, we'll see you in the next video.